Hello everyone. I hope you guys are preparing very well for GATE 2026. In this session, we are going to discuss about a very important portion of general aptitude, that is Venn diagram. You will see that in recent 3-4 years of GATE, you will find questions on this Venn diagram portion. They are frequently asking questions on this particular topic. So that's why we should prepare this Venn diagram topic very thoroughly. Okay. Before starting the session, there is an announcement. You can download our app from Google Play Store, and I have also provided the link of our app in the description box. You can see the rating of our app has been 5-star. If you open our app, you will see this complete engineering mathematics course for GATE 26 aspirants. The branches who can enroll for this course are aerospace, agriculture, biotechnology, biomedical, civil, chemical, electrical, electronics, instrumentation, mechanical, production, material, mining, petroleum, and textile and fiber science students can also enroll for this course. In this course, you will get live lectures along with the recorded lectures and as well as free test series. If you go to the content section, you will see I have provided the structured course on each topic like linear algebra. You will see each and everything starting from the basics towards the advanced level. For each topic, I have provided the exhaustive content, and this content you can cover in just 20 days. So what you have to do? You have to download our app and you can enroll for this course. Let's discuss the first question. So this question was asked in GATE 2025 in aerospace engineering and environmental science and many other branches as well. Because what happens is that a single aptitude paper can be asked in different branches. जिस डेट में वो पर्टिकुलर एग्जाम होता है उस डेट में जो भी ब्रांचेस के बच्चे अपीयर होते हैं उनके पास में सेम एप्टीट्यूड का पोर्शन उनको अपीयर होता है, राइट? सो द क्वेश्चन सेज दैट in the given figure, the numbers associated with the rectangle, triangle and ellipse are 1, 2, 3. That means एक रेक्टेंगल है, फर्स्ट वन. कौन सा रेक्टेंगल है? ये वाला. देखिए ये रेक्टेंगल का नंबर क्या दिया है भाई साहब? 1. उसके बाद क्या है? ट्रायंगल है, तो वो ट्रायंगल है जो उसका नंबर क्या है भैया? 2. ठीक है. थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला इलिप्स है, राइट, जिसका नंबर है 3, राइट? ओके. नाउ अभी हमसे यहां पर क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास में यहां पर रिस्पेक्टिवली विच वन अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्यू आर. तो हमें बताना है कि जो पी पोर्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ दिस 1, 2, 3. देखिए ऑप्शंस में, देखिए इस तरह से करके आपके ऑप्शंस दे रखे. तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं P को देखूं तो P क्या, जो P है वो इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है. दैट मीन्स P इज कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगल प्लस, क्या P इस ट्रायंगल के भी अंदर आ रहा है? यस, P is also consisting of triangle, right? प्लस क्या P इस एलिप्स के भी अंदर आ रहा है? आप बोलेंगे जी हाँ, ठीक है, राइट. सो यू विल हैव 1, 2 and 3. आप सम करेंगे, क्या मिलेगा? 3, 2, 5, 5, 1, 6. दैट मीन्स P can be 6
So P is 6 here, you can see, right? Now if we look about this Q, so Q क्या कंसिस्ट कर रहा है? Q क्या रेक्टेंगल को कंसिस्ट कर रहा है? Q रेक्टेंगल के अंदर है क्या? नहीं, दैट मीन्स रेक्टेंगल वाला पोर्शन नहीं आएगा Q में. Q ट्राइंगल के अंदर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल. Q क्या है? ट्राइंगल के अंदर है. प्लस क्या Q एलिप्स के अंदर है? जी हाँ, Q इज इनसाइड द एलिप्स. दैट मीन्स triangle is described by 2, ellipse is described by 3. That means overall क्या हो जाएगा हमारे पास में? Q can be described by number 5, right? Similarly, R can be described by what? R हमारे पास में इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है. जी हाँ, बिल्कुल. प्लस क्या R एलिप्स के अंदर आ रहा है? देखिए, आर क्या एलिप्स के अंदर आ रहा है क्या? नहीं, आर तो यहां पर है. आर किसके अंदर आ रहा है? ट्राइंगल के अंदर आ रहा है. दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल. रेक्टेंगल वाज 1, ट्राइंगल वाज 2. दैट मीन्स 2 + 1 3. सो these are the numbers that can be assigned to PQR, which is given in the option A. That is, P can be assigned 6, Q can be assigned as 5, and R can be assigned as 3, right? So option A is the most appropriate combination of PQR, right? So in this way you can proceed for the question of Venn diagram, right? Let's do one more problem on this. चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में पूछा गया था, और भी डिफरेंट ब्रांचेस के जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन इंक्लूडेड था. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में क्या है, एक कलर कोडिंग दे रखी है. अ कलर मॉडल इज शोन इन द फिगर विथ कलर कोड्स येलो फॉर वाई, मजेंटा फॉर एम, cyan for CY, red for R, BL for blue, green for G and black for K, जो कि यहाँ पर डिफाइंड है. तो हमें बोला गया है कि इसी चीज़ को अगर हम इस वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको ये बताना है, राइट? तो अभी सवाल ये होता है कि पहले हमें ये डिकोड करना पड़ेगा ना. इस तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये डिकोड करना पड़ेगा. तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये जो येलो वाला पोर्शन वाई वाला है, दिस वाई पोर्शन इंडिकेट्स दिस पार्ट, राइट, एंड दिस मेजेंटा पोर्शन इंडिकेट्स दिस पार्ट, राइट, एंड दिस रेड पोर्शन आर इंडिकेट्स अबाउट येलो एंड मेजेंटा. सो कैन वी राइट येलो intersection magenta is equal to red? Can I write this? Do you agree? This red part is a intersection of yellow and magenta part, right? Similarly, this blue part is intersection of magenta and cyan. So can I write magenta intersection cyan equal to BL blue? Okay, we have written this blue is an intersection of magenta and cyan. Okay, now can we write this green as intersection of yellow and cyan? Definitely, yellow intersection cyan can be written as this green for G. And the last one, that is this black K, जो बीच में है black, this can be written as intersection of yellow, magenta and cyan, both three. So can we write the intersection of yellow, magenta and cyan, all these three intersection will give me black K, right? ठीक है. इतना कलर कोडिंग सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे. बिकॉज जब तक हम इस पार्ट को डिकोड नहीं करेंगे हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, ऑब्वियस है. ठीक है. तो
अभी सबसे पहले मैं गौर करूँगा इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये एक बड़ा सा इंटरसेक्शन है जहाँ पर कि येलो का इंटरसेक्शन मैजेंटा के साथ होना चाहिए और मैजेंटा का इंटरसेक्शन सियान के साथ होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा? ब्लैक के, राइट। अभी आप देखिए ऑप्शन में, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो जो के है वो कहाँ पर है? के यहाँ पर है, राइट। अभी आप बोलेंगे येलो कहाँ पर है? तो येलो इज़ दिस पार्ट, येलो वाई, राइट। येलो ये वाला पार्ट है वाई। मजेंटा कौन वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट है मजेंटा, एम मजेंटा। एंड सियान वाला कौन सा पार्ट है? दिस पार्ट इज बिलोंग्स टू सी वाई सियान, राइट। तीनों पार्ट आपको समझ में आ गया? येलो पार्ट, मैजेंटा पार्ट एंड सियान पार्ट। दिस वन इज येलो, दिस वन इज मैजेंटा एंड दिस वन इज सी वाई सियान। ओके, नाउ इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? के। चलिए करते हैं। सबसे पहला ये वाला पार्ट क्या है? येलो, देन मैजेंटा, देन वी हैव दिस सियान। अभी आप बताइए, जब हमने इन तीनों को ड्रॉ किया तो बीच में हमें क्या मिल गया? के, दैट इज ब्लैक। दैट मीन्स ऑप्शन ए कैन बी द करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है। ऑप्शन ए कैन बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? ऑप्शन बी में आप खोजिए कि ये के कहाँ पर है, राइट। ऑप्शन बी में हम खोज लेते हैं कि के जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में के है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं येलो वाई येलो, इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? के। इंटरसेक्शन होना चाहिए येलो का मैजेंटा के साथ में, और मैजेंटा एंड सियान तीनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो हमें के ब्लैक मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर येलो लिखा, येलो अभी दिखा, ये वाला येलो पोर्शन है, दिस पार्ट इज येलो, राइट। मैजेंटा पोर्शन इज दिस वन, राइट, एंड सियान पोर्शन इज दिस वन। अभी बताइए के जो है दैट इज रिसाइडिंग हेयर, क्या ये के सियान वाले का पार्ट है? इस वाले का पार्ट है क्या ये? तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जो के है वो तो आउटसाइड दिस सियान बॉक्स है। दैट मीन्स दिस कांट बी द ऑप्शन, राइट, करेक्ट। या इस बात से तो आप अग्री कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो के है इन ऑप्शन बी यहाँ पर के है, और सी वाई सियान वाला बॉक्स तो यहाँ पर है, उसके तो अंदर ही नहीं है वो के। दैट मीन्स ऑप्शन बी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज येलो का इंटरसेक्शन मैजेंटा के साथ में और सियान तीनों का इंटरसेक्शन होने पे हमें के मिलना चाहिए, बट के तो सिर्फ यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि येलो के अंदर आ रहा है और मैजेंटा के ही अंदर आ रहा है, सियान के तो अंदर आ ही नहीं रहा है, राइट। सो ऑप्शन बी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन सी को देखते हैं। सी को अगर हम देखेंगे तो जो के है वो येलो के अंदर तो आ रहा है के, मैजेंटा के अंदर भी आ रहा है के ऑप्शन सी में, और सियान के अंदर भी आ रहा है के में। तो ये जो ऑप्शन सी है दिस कैन बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन डी को चेक करते हैं अभी। ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो के अगेन यहाँ पर है, हियर के, ठीक है। तो के येलो के अंदर तो आ रहा है, मैजेंटा के अंदर भी आ रहा है के, बट के इज़ नॉट कमिंग अंडर सियान, क्योंकि के कहाँ पर है? यहाँ पर, राइट। और सियान वाला बॉक्स ये वाला है। दैट मीन्स ऑप्शन डी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। अभी आप बोलेंगे सर दो ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए और सी में से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है? तो हमने तो अभी जस्ट एक कंडीशन चेक किया है ना, हमने तो अभी जस्ट एक कंडीशन चेक किया ये वाला, उसी से हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया कि ये दो ऑप्शंस गलत है और ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बाकी के तीन जो कंडीशंस है उनको भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। सो these three conditions is only satisfied this by ऑप्शन ए। अभी आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी में क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा, आप मेरे को बताओ। ठीक है, वो भी बताता हूँ, डोंट वरी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी, राइट। अभी आप देखिए, अगर मैं
आपको बोलूं कि हमारे पास में जो ब्लैक पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, मैजेंटा एंड सियान का क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, जो ब्लैक है वो मैजेंटा और सियान का इंटरसेक्शन होना चाहिए। मैजेंटा कहाँ पर है बताइए, मैजेंटा इज राइट हियर, रेड से बनाता हूँ, मैजेंटा इज राइट हियर एंड सियान इज राइट हियर। अभी आप बताइए कि क्या ये जो ब्लैक वाला BL है ब्लैक, ये वाला यहाँ पर भी ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है, क्या ये दोनों में से कोई भी सियान वाले बॉक्स के अंदर है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज येलो एंड सियान, सॉरी माय मिस्टेक, मैजेंटा एंड सियान, मैजेंटा एंड सियान, इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए था, ब्लैक। बट ये जो ब्लैक है वो तो इस सियान वाले बॉक्स के अंदर ही नहीं है, राइट, सिर्फ ये वाला मैजेंटा के अंदर है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, राइट। ऑप्शन ए जो है हर एक कंडीशन को फॉलो करेगा, आप चेक करिए, क्योंकि ऑप्शन मैंने 3 तो ऑलरेडी गलत करके दिखा दिया आपको, तो ऑप्शन एक ही बचा है, दैट इज ए, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नो डाउट दिस वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जाम में इस क्वेश्चन को विद इन 2-3 मिनट्स करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप एग्ज़ाम का प्रेशर जब आपके सामने रहता है तो आपसे गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप रूम पे अगर बैठ के बना रहे हैं तो माइट बी पॉसिबल दैट यू कैन डू इन 2-3 मिनट्स, बट इन एग्ज़ाम प्रेशर it is very difficult to find this kind of visual problem within 2-3 minutes. You can take 4-5 minutes to understand the particular problem and to decode the problem and to solve the problem. You need 2-3 minutes at least, right? So no doubt अगर आप फर्स्ट गो में इस क्वेश्चन को नहीं भी बना पाते हैं, it's okay, don't feel demotivated, because this type of questions are inserted in the question paper in order to distinguish between the topper and an average student, right? कोई बात नहीं है, I think this question is very pretty conceptual and very tricky also. So I hope आपको ये पूरा सेशन क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। So thank you so much, जय हिंद, जय भारत।